Namaste children. In previous video you have watched the classification of resources on different bases. Today through this video I will teach you about the sustainable development and conservation of the resource. First of all, what is sustainable development? Children, development that takes place without damaging the environment is called sustainable development. Through sustainable development, needs of present is fulfilled without compromising the needs of future generation. This is the objective of सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हिंदी में मैं क्लियर कर देता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है साधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण को डैमेज होने से बचाना. दूसरा ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि इफ यू आर यूजिंग द रिसोर्स इन ए सस्टेनेबल मैनर, दैट मीन्स in an optimum manner, in a judicious way, then what will happen? The needs of present generation will be fulfilled and it will be kept safe also for the coming generation. Because what the nature has gifted us is not meant for our own use only. It should be our manner. It should be our duty to use the resource and keep the resource safe for coming generation. आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमें संसाधनों को बचा के रखना जरूरी है. एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड ऑफ आवर. आज के इस समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? तो चिल्ड्रन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नीड ऑफ आवर बिकॉज most of resources are limited in their supply. जैसे आप मिनरल्स ले लो, ये एक लिमिट अमाउंट में अर्थ के क्रस्ट में स्टोर्ड है. इसको आप ओवर यूज करोगे, इफ यू विल नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज इट, नेचुरली द टाइम विल कम, all the mineral resources will be exhausted, and after that our development will automatically stop. तो चिल्ड्रन, ऐसे लिमिटेड रिसोर्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी उचित उपयोग, न्यायोचित उपयोग कह सकते हो, करना बहुत ही जरूरी है. दूसरा कारण है कि व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नीड ऑफ आवर. द सेकेंड रीजन बिहाइंड इट दैट ओवर यूज ऑफ मेनी रिसोर्सेज हैज लेड देयर depletion and degradation.
वाटर को ओवर यूज करने से वाटर की क्वालिटी जो है खराब होती जा रही है। केमिकल उसमें डिस्चार्ज करते हैं फैक्ट्री से, उससे उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए the farmers are using excess amount of chemicals and fertilizer in their farmland to get maximum yield of the crop. As a result, the quality of soil is degrading day by day. So, in place of chemical fertilizer, biofertilizer or manure should be used. This is the sustainable way of resource utilization. Next reason, the quality of land is also degrading because of dumping of plastics, polythene and discharging of chemicals, etc. Therefore, it is very much necessary to use the resource in a sustainable manner. Now the question comes before all of us कि how should we use the resource? कैसे हमको यूज करना चाहिए? The answer is given in your textbook page number 4. You can read there that we should use the resource judiciously. We should minimize the depletion and wastage of the resources. साधन जो अपने आप घट रहा है उसको कम से कम यूज करना चाहिए, उसकी बर्बादी कम करनी चाहिए. We should conserve varied resources. रिसोर्स को बचाना जरूरी है, इसलिए जितने साधन हैं उनको बचा के यूज करना चाहिए. तो हाउ कैन वी सेव वेरिड रिसोर्स? वहां फिर एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होगा कि व्हाई इज देयर ए नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग? चिल्ड्रन, रिसोर्स कंजर्वेशन से पहले आपको रिसोर्स का प्लानिंग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली रिसोर्स जो है आपके प्रॉपर यूज होगा और वो कंजर्व हो जाएगा, वो बच जाएगा आगे के लिए. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल. प्लानिंग क्या होता है बच्चे? प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी है हाउ टू यूज द रिसोर्स इन ए प्रॉपर way. That means proper and efficient use of resource, that is known as resource planning. कैसे उसको यूज करेंगे कि आप का काम भी हो जाएगा और वो आगे के लिए सेफ भी रहेगा. इसके लिए एक स्ट्रेटेजी, एक नीति तैयार करनी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग. सो question is कि why is there a need for resource planning? So there is a need for resource planning for optimum use of the resource. रिसोर्स का प्लानिंग उचित तरीके से यूज करने के लिए जरूरी है. रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. दैट मीन्स बाय यूजिंग द रिसोर्स नॉट डिस्टर्बिंग द environment. Third point is here, distribution of resources across the world is uneven. So resource planning is essential. resource planning जरूरी इसलिए है कि सारे, कहीं पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पर सॉइल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं वाटर का अकरेंस ज़्यादा है. तो यदि बचा के रखेंगे तो जहाँ डेफिशिएंट एरिया होगा, नीडफुल एरिया होगा, तो वहाँ आप उसको सप्लाई कर सकते हो या उनके उस रिसोर्स के द्वारा उनके नीड को फुलफिल कर सकते हो. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज
the need of ours. Now the question is, as per the topic, कंजर्वेशन. चलें, अभी तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीकों को डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स? और द क्वेश्चन कम्स, डिफाइन कंजर्वेशन. So children, you can answer that optimum and judicious use of the resource is called conservation. Frequently I have been telling these two words, optimum, judicious. Optimum, that means proper use. जितना आपको जरूरत है उतना ही उपयोग करें. That is called optimum. Judicious मतलब तरीका उसका सही होना चाहिए रिसोर्स के यूज करने का. You watch in your surroundings that coal is transported from the coal mines of your area to the power plant. On the way, there is a wastage of coal due to the process of carriage. So this is not the way of conservation and proper utilization. इसके सही तरीके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सही करना चाहिए. डंपिंग यार्ड जो है वहां पर प्रॉपर स्टोर होना चाहिए. जहां पर कोयले से, वेयर द कोल इज कन्वर्टेड बाय बर्निंग इनटू द थर्मल पावर एनर्जी, there it should be properly utilized. This is one of the examples I have discussed to you, because you are watching these things, observing these things, rather you can say, in your locality where you are living. आप देखते हो कि ट्रक में कोयले के डस्ट उड़ते जा रहे हैं, रास्ते में कोयले के टुकड़े गिरते हैं. तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रॉपर नहीं है. इस तरह बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप डिफरेंट रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो. तो इस तरह डिफाइन याद करना है बच्चे कि ऑप्टिमम एंड जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेशन. फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाउ कैन वी कंजर्व द रिसोर्सेज. Children, you know that rapid growth of population has resulted overutilization of the natural resources. तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही है, इससे नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एयर की क्वालिटी, प्लांट्स का डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है. This overuse of resource has led to the depletion and degradation of natural resources. That means due to fast growth of population, the natural resources are utilized aimlessly without knowing the consequence. But this overuse is threatening to the people as their quality is decreasing, their number is decreasing, their forest area is getting degraded because of excessive cutting, quality of air is getting polluted because excessive exhaustion and emission of toxic gases from the factory or the vehicles. In this way, our natural resources are getting degraded. I have told you earlier that overuse of fertilizer in the soil, the quality of soil is getting deteriorated. As a result, the
per hectare production as it should be. Due to the overuse of fertilizer, now it is going to decrease. While in the beginning process of cultivation to raise the fertility, to raise the per hectare production, chemical fertilizer was used. But due to excess use, now the quality of soil has degraded. तो कंजर्वेशन बच्चे इसीलिए जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ज़रूरत है। ओवर यूज़ ऑफ वाटर से वाटर की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो इसलिए कंजर्वेशन ज़रूरत है। एंड देयर इज ए नीड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी जरूरी है। बैलेंस्ड जब तक इकोलॉजिकल नहीं रहेंगे, ऑप्टिमम वे में नंबर में प्लांट्स नहीं रहेगा, एनिमल्स नहीं रहेंगे, सॉइल की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी नहीं रहेगी, तो आवर सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट। सो कंजर्वेशन इज essential, children, and few things I am going to discuss with you, that how you can conserve the resources. To conserve the resource, children, we should spread the awareness to save the degradation of earth's resource. इस अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उनके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि आप इनको खराब करोगे, इनकी क्वालिटी को डिग्रेड करोगे, तो एक दिन वो आपकी क्वालिटी को, आपके नंबर को डिग्रेड कर देंगे। इसके लिए बेहतर तरीका है, वी शुड अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस इन आवर लाइफ 5R। ये 5R क्या है? रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस द वेस्टेज। फिर है रीयूज, द रिसोर्सेज विच कैन बी used again, that resource must be used again and again। जैसे वाटर को फिर से यूज कर सकते हैं आप, एयर को यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी बार बार यूज कर सकते हैं। रिसाइकल द रिसोर्स, यदि वाटर पॉल्यूटेड है तो उसको आप फिल्टर करके फिर से यूज कर सकते हैं। आयरन स्क्रैप हो गया तो उसको फिर से, स्क्रैप आयरन को फिर से मेल्टिंग करके प्योर आयरन सेपरेट करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं। रिफ्यूज, वेस्टेज जितने हैं उनको आप त्यागिए। एंड लास्ट आर जो है रीथिंक, यानी हमेशा वी शुड थिंक टू कंजर्व द रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स के बारे में है कि यूज द रिसोर्स अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड। Children, this is the lesson of this topic. With this quotation, I would like to conclude. Please try to complete the answer as I have discussed most of the questions through these 2-3 videos. Thank you.